Good afternoon, students. So, welcome to maths class. So, keep your maths notebook with you. Okay. Write today's date. Write today's date. Write today's date and write revision of multiplication. Revision of multiplication. First sum is first sum is 37 multiplied by 24. Okay. You have to multiply 37 with 24. Okay, you will solve it, then I'll explain, then you will check. ठीक है जी, आप सॉल्व करोगे, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगी और आप साथ में चेक करोगे. Very good. So those who have joined now, for them, write today's date and open your math notebook and do this sum. 37 multiplied by 24. Show me your thumb if board is visible to you. Okay, thank you. 37 multiplied by 24. Very good. All are solving. I can see. सभी solve कर रहे हैं. And keep your cameras on so that I can see you. Srishti, are you solving? Where is pen? No pen in your head. No pencil in your hand. How you are solving? Very good. Write your answer in the chat box. ठीक है? And keep your cameras on. How will I see you? मैं आपको कैसे देखूंगी? Keep your cameras on. Okay? Very good. Very good. Very good. All are doing. Very nice. Okay, Darshil has written the answer also. Very good. Now I am going to solve this sum on the board. Check your answer and steps also. ठीक है? आपने अपना आंसर भी चेक करना और स्टेप भी चेक करने हैं कि कैसे स्टेप बाय स्टेप हमने मल्टीप्लाई की है. ओके, दर्शील चेक योर आंसर बेटा. देयर इज सम प्रॉब्लम. हर्षिका, यू आल्सो चेक योर आंसर. Conver, you also check your answer. So those who are joining now, we are doing multiplication sums revision. ठीक है? I have written one sum here. You have to solve that sum. जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है उनके लिए मैं बता रही हूँ कि we have started revision of multiplication. साहिब, your answer is wrong बेटा. Do it again. Lakshman, correct. Very good. Okay, so I am going to solve it. What happened? आज बहुत बच्चे लेट ज्वाइन कर रहे हैं. Your class starts at 12:45. Okay, so try to join on the time. Hanji, very good. Now Sanvi has written correct answer. Good. Okay, so we'll solve it first. Ones, tens. We'll write place value. 37 multiplied by 24. Okay, we'll arrange the numbers. My camera is on, Harshika.
My camera is on. Now we'll multiply. सबसे पहले हमने फर्स्ट डिजिट जो है 4 को हमने मल्टीप्लाई करना है, जैसे हम नॉर्मल 1 डिजिट मल्टीप्लिकेशन करते हैं ना, वैसे ही करना है. 4 7s are 28. 8 will be here and 2 will be carried over. 4 3s are 12. 12 plus 2 14. ओके. अब आपने 4 की मल्टीप्लिकेशन हो गई, ठीक है, फर्स्ट डिजिट की मल्टीप्लिकेशन हो गई. अब हमने करनी है नेक्स्ट डिजिट 2 की मल्टीप्लिकेशन, सेम वैसे ही, ठीक है. 2 को मल्टीप्लाई करना है 37 से. तो पिछला जो कैरी लिखा है आपने उसको आप रब कर दो ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है. 2 7s are, यहाँ पे हम साइन ऑफ एडिशन लगाएंगे. 2 7s are 14. 1 will be carried over. 2 3s are 6. 6 plus 1 7. Okay. Now we will add. Okay. अब हम ऐड करेंगे, वो तो बहुत इजी है. 8 प्लस का साइन है मतलब कोई डिजिट नहीं यहाँ पे, तो 8 को 8 एज इट इज लिख देंगे. 4 plus 4 8. 1 plus 7 8. So the answer is 888. अब हितांशी के माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि आंसर लिखना जरूरी है ना हितांशी? इट्स नेसेसरी, ठीक है, ये जरूरी है, आंसर आपने लिखना है. ओके. ठीक है जी. I hope all have done this sum. Now, second sum. Multiply. Now you need to understand statement also. अगर आपको sum ऐसे आ जाए, multiply 235 74. Okay. Now do the multiplication of this. Very easy. Arrange the numbers first according to their place value, and then first of all you will multiply with 4, and in the next step you will multiply with 7. Okay. And then write your answer in the chat box. Very good. Very nice. All are doing. Very good. 235. You have to multiply 235 with 74. 235 को आपने 74 से मल्टीप्लाई करना है. Very good. And you have to write your answer in the chat box. So let's do this sum. Second sum. We will write place values first. 235 multiply by 74. Okay. 4 5s are 20. 0. 2 will be carried over. 4 3s are 12. 12 plus 2 14.
1 will be carried over. 4 2s are 8. 8 plus 1 9. अब हमने 7 से मल्टीप्लाई करना है, सो वी विल रब द कैरी ओवर. जो हमने पिछले डिजिट से मल्टीप्लिकेशन की थी ना, वो हम रब कर देंगे. ठीक है. 7 5s are 35. 3 will be carried over. 7 3s are 21. 21 plus 3 24. 4 will be here. 2 will be carried over. 7 2s are 14. 14 plus 2 16. So 0. 4 plus 9. 4 plus 5 9. 9 plus 4 13. 1 will be carried over. 7 1. Whenever you write any carry, जब भी आपने कोई कैरी या बोरो लिखना है, आपने उसको सर्कल बना के लिखना है ताकि आपको क्लियर रहे कि ये कैरी है. ठीक है, नॉट अ डिजिट. इसको हमने ऐड करना है. इसको हमने ऐड करना है. सो द आंसर इज yes, 17,390. 17,390. वेरी गुड. सो नाउ अब हमने करनी है मल्टीप्लीकेशन विथ 100,000, मतलब जिनमें जीरोज होती है, तो हम उसको शॉर्टकट में कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं. ओके, हाउ कैन वी मल्टीप्लाई देम इन शॉर्टकट. ठीक है, विदाउट सॉल्विंग. सो आई एम गोइंग टू रब. हाँ जी. सो solve these. 15 multiply by 100. Number 2, 28 multiply by 10. Number 3, 35 multiply by 1000. Very easy. इसको आप बिना मल्टीप्लाई किए लिख सकते हो. कैसे? यू हैव टू सी जस्ट जीरोस. कितनी जीरोस है? आगे 1 है, साथ में जीरोस है, तो आपने आंसर में वो डिजिट जो फर्स्ट पे हमने लिखा है वो नंबर और उसके साथ उतनी जीरोस लगा देनी है. ओके. यस, वेरी गुड मनदीप. जैसे अब देखो, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, ऐसे प्लेस वैल्यूज लिख के पहले 100 मल्टीप्लाई बाय 15, इतना लंबा करने की जरूरत नहीं है. सीधा 15, हाउ मेनी जीरोस? 2 जीरोस, 2 जीरोस. ठीक है. देन 28, 10 इज देयर, 1 है यहाँ पे ओनली. ये तभी पॉसिबल है, तभी हम कर सकते हैं अगर यहाँ पे 1 है आगे. ठीक है, अगर कोई और डिजिट है तब नहीं, तब हमें उसको भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो यहाँ पे हमने 1 0 1 0. नाउ हियर वी हैव 35, 3 zeros, 3 zeros. ओके. बहुत इजी है, सिंपल. हमें जीरो देखने हैं और हमें मल्टीप्लाई कर देना है. यस, वेरी इजी. नाउ अगर यहाँ पे 1 की जगह कोई और डिजिट हो, देन हाउ विल वी सॉल्व इट? Suppose here 20, here
300 and here 400. तब हम क्या करेंगे, सिंपल, हमने फर्स्ट जो जीरो के बिना जो डिजिट है 2 है ना, यहाँ पे हमने 2 को 15 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है. 2 5s are 10, 1 will be carried over, 2 1s are 2, 2 plus 1 3, 30 आ गया 2 से मल्टीप्लाई करके. अब 2 के बाद कितनी जीरोस है, 1 जीरो है, साथ में 1 जीरो लगा दी, 300. ठीक है, ओरली हम कर सकते हैं इनको. नेक्स्ट 3 को हम 28 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 8s are 24, 2 will be carried over, 3 2s are 6, 6 plus 2 8 और 2 जीरोस लगा देंगे. ठीक है, जितने जीरो साथ में वो बाद में उतनी जीरोस लगा देंगे. नाउ नेक्स्ट 4 को पहले 35 से मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है, 4 5s are 20, 2 will be carried over, 4 3s are 12, 12 plus 2 40, 140 हमें 4 को मल्टीप्लाई करके मिला. देन वी विल ऐड 2 जीरोस जो 4 के पीछे लगी है. द आंसर इज 14,000. यस तान्या, अनम्यूट. एक्सक्यूज मी मैम, ये जो सॉल्वीज हैं हमने 1 वाले तो कर लिए, हमने ये वाले भी करने हैं 1 1 को रब करके, जैसे हमने 2 लिख लिया, फिर 3 फिर 4. यस बेटा, जस्ट फॉर योर नॉलेज, ये मैं आपको जस्ट फॉर योर नॉलेज करवा रही हूँ. ठीक है, आपको पता होना चाहिए. आप दूसरी तरह से मल्टीप्लाई करके भी आंसर निकाल सकते हो, जरूरी नहीं कि आपने शॉर्टकट ही करना है. ठीक है, दूसरी तरह से भी निकाल सकते हो, लेकिन मैंने आपको दोनों वेज बता दिए कि आप शॉर्टकट कैसे जीरो वाले नंबर्स को मल्टीप्लाई कर सकते हो और कैसे आप यहाँ पे अगर 0 के 1 के अलावा कोई डिजिट थे तब कैसे कर सकते हो. ठीक है, ओके थैंक यू. ओके. So now one sum I am giving you. Okay, that is from your book, page number 48. Page number 48 worksheet is given. 10th sum is there. ऐसा ही एक सम आपको प्रैक्टिस असाइनमेंट में आया था. ठीक है, तो उससे मिलता जुलता सम मैं आपको डाल रही हूँ. फाइंड 540 लेस देन 8080. फाइंड 540 less than 8080. What does it mean? कौन बताएगा? Who will tell? Raise your hands. Mahiraj, unmute beta. Good afternoon sir. Good afternoon. Minus. माइनस, यस. लेस मतलब कम करना है हमने, है ना. कम करने के लिए हम क्या कर देते हैं, माइनस. और माइनस अब कितने से करेंगे, 8080 में से माइनस कर देंगे 540. 0, 8 minus 4 4, 10 minus 5 5, 7 will be here. ओके, अगर यहाँ पे मोर देन होता तो हमने क्या करना था, ऐड करना था. क्लियर, we will add. Let's do one statement sum from this worksheet. Question number 4, 48 page. Question number 4. So we are going to do fourth sum of
worksheet which is given on page number 48 of your maths book. ठीक है, अब हम फोर्थ सम करने जा रहे हैं वर्कशीट में से जो 48 पेज नंबर पे गिवन है. द स्टेटमेंट इज द कॉस्ट ऑफ वन बाइसिकल इज ₹2000 and of other bicycle is ₹4500. What is the difference between their cost? मतलब हमें उनकी कीमतों में डिफरेंस बताना है. ठीक है, दोनों साइकिल्स के अलग अलग प्राइस है, अलग अलग कीमत है. हमने उन दोनों में की प्राइस में जो डिफरेंस है वो बताना है कितना है. तो डिफरेंस बताने के लिए हम क्या करते हैं, व्हाट वी डू फॉर डिफरेंस. डिफरेंस हमें कैसे मिलता है, जब हम प्लस करते हैं या जब हम माइनस करते हैं. यस, माइनस. व्हेन वी माइनस we subtract, then we get the difference. और difference find out करने के लिए what we do, we have to write the greatest number at the top and the smallest number at the bottom. ठीक है, नीचे हमने smallest number लिखना होता है, greatest number हमने ऊपर लिखना होता है. तो आप यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको दो साइकिल्स का प्राइस गिवन है. ठीक है, जिसका ज्यादा प्राइस है उसको हम ऊपर लिखेंगे क्योंकि हमें सब्ट्रैक्ट करना है ना. सो हाउ वी विल राइट द स्टेटमेंट. पेज 48 क्वेश्चन नंबर 4. सो द कॉस्ट ऑफ one cycle is equal to ₹4,500. Why we are writing this? Because we have to subtract. ठीक है, हमें सब्ट्रैक्ट करना है और हमने पहले जिसकी कॉस्ट ज्यादा है उस वाली साइकिल की कॉस्ट पहले लिखनी है. ठीक है, ऐसे हम लिख सकते हैं. ठीक है, पहले हम सेकंड नंबर जो हमें गिवन है उसको हम लिख सकते हैं. ठीक है, नाउ द कॉस्ट ऑफ अदर साइकिल is equal to 2000. But we have to find difference between their cost. Difference between their cost. cost मतलब उनकी प्राइस, उनकी कीमत में डिफरेंस हमें बताना है. So we'll subtract 0 minus 0 0, 0 minus 0 0, 5 minus 0 5, 4 minus 2 2. So what is the difference? Answer रुपीस में लिखेंगे ₹2500. या आप ये बोल सकते हो कि फर्स्ट साइकिल का प्राइस सेकंड साइकिल से 2500 ज्यादा है. ओके, यस रेजी, unmute yourself. Okay, then we'll start. Yes, Manpreet, unmute yourself. हाँ जी, unmute yourself, Manpreet. मैम मैं रुपीस का साइन ऊपर डाल सकती हूँ. Yes, yes, you can put rupees sign at the top or side the number also. नंबर के साइड में भी आप रुपीस का साइन लिख सकते हो, आगे लिख सकते हो यहाँ पे. ठीक है, ठीक है, और ऊपर भी डाल सकते हो, आपकी विश है. लेकिन आंसर में आपने यहाँ पे जरूर रुपीस का साइन लिखना है. ठीक है, because you are giving the answer in rupees, not in number. ओके मैम. Okay, so थैंक यू मैम. okay बेटा. Now next sum देखेंगे जरा, sixth sum. Okay, sixth statement sum. There are 600 girls and 750 boys in a school.
ठीक है. If 300 students are absent on a particular day, how many are present? Can you tell me कि हमें total students कैसे पता चल सकता है? Total number of students. We are given number of girls and number of boys. Total student कैसे पता चलेगा हमें? और उसमें से 300 एक दिन एब्सेंट थे, है ना? तो हमें बताना है कि कितने प्रेजेंट थे उस दिन. तो पहले हम टोटल स्टूडेंट फाइंड आउट करेंगे. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल राइट नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू 600. देन नंबर ऑफ बॉयज we have 750. Now total number of students we will add. Yes, 0, 5, 6 plus 7, 13. So we have total number of students 13, 1350. अब हमें बोला है कि इनमें से 300 स्टूडेंट्स एब्सेंट थे वन डे, किसी पर्टिकुलर डे पे 300 स्टूडेंट्स एब्सेंट थे. तो बताइए प्रेजेंट स्टूडेंट कितने होंगे? तो अब हम क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ एब्सेंट स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 300. ठीक है. नंबर ऑफ प्रेजेंट स्टूडेंट, प्रेजेंट कैसे पता चलेंगे हमें? जब हम टोटल स्टूडेंट्स में से एब्सेंट स्टूडेंट को माइनस कर देंगे तभी हमें प्रेजेंट स्टूडेंट पता चलेंगे कि कितने हैं, है ना? आपने देखा है ना, जब हम क्लास में स्कूल में हम अटेंडेंस लिखते थे बोर्ड पे, है ना? जितने बच्चे प्रेजेंट होते थे टोटल स्टूडेंट्स लिखते थे कॉर्नर पे, फिर प्रेजेंट स्टूडेंट्स, फिर एब्सेंट स्टूडेंट्स, है ना? ऐसे लिखते थे ना. वैसे ही है यहाँ पे. तो यहाँ पे पूरे स्कूल का बताना है, वहां पे हम अपनी सिर्फ क्लास का लिखते थे. तो अब हम माइनस कर देंगे एब्सेंट स्टूडेंट. 0, 5 minus 0, 5, 3 minus 3, 0, 1. So answer is 1050 students. ठीक है जी. So in this way we'll solve this sum. Now if you have any doubt you can ask. Hanji, Hitanshi. Unmute. मैम आपने ये नंबर, मैम थर्ड लाइन, मैम फोर्थ लाइन में आपने नंबर ऑफ क्या लिखा है? नंबर ऑफ एब्सेंट स्टूडेंट्स. ओके मैम. दोबारा लिख देती हूँ मैं. नंबर ऑफ एब्सेंट स्टूडेंट्स. हाँ जी सुखराज. मैम आप रिकॉर्डिंग ग्रुप में भेजोगे? मेरे नेटवर्क की प्रॉब्लम से मेरी क्लास लीव हो गई. बेटा रिकॉर्डिंग हर क्लास की रिकॉर्डिंग ग्रुप में आती है आपके उसी दिन. ठीक है, आफ्टर 2 o'clock यू कैन सी द रिकॉर्डिंग. पारिन अनम्यूट. कब आएगी रिकॉर्डिंग? मैम ये जो आप कर रहा है वो वाला सब में पार्ट 1 पार्ट 2 लिखना है. You can write part 1 part 2, otherwise you can solve like this also. Okay. So I hope everyone's doubt is clear.
चलिए फिर 16 का टेबल तो लर्न हो गया होगा सबको, है ना? Who will speak table of 16? यशिका. यशिका, unmute yourself. सात्विक. यस मैम। हाँ जी बेटा, जल्दी से 16 का टेबल सुना दो. 16 0 is 0, 16 1 is 16, 16 2 is 32, 16 3 is 48, 16 4 is 64, 16 5 is 80, 16 6 is 96, 16 7 is 112, 16 8 is 124, 16 9 is 144, 16 10 is 160. बेटा 16 8 का 128. हाँ 128. आपने 124 बोल दिया था, ठीक है. अदरवाइज वेरी गुड, वेरी नाइस, वेल ट्राई. हाँ जी.